विविधौ सदीनां धन्वन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारं वन्दे पीयूषदायकम् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Namaste. Good evening to all. On behalf of Bharat Arogya Sanghadana BAS, it is my great pleasure to extend a warm welcome to all of you. We are delighted to have you join us for the second national webinar, CardioBiz, a special gathering where we give details regarding the important topics of cardiology like cardiac arrest, hypertension, diagnostic features, and emergency management. Our organization stands as a beacon for the Ayush practitioners committed to their welfare and empowerment. Together, we aim to propagate Ayush schemes that bring tangible benefits to the communities across our nation. At Bharat Arogya Sanghadana BAS, we are passionate about fostering awareness and understanding of Ayush system among the general public. Through the education and advocacy, we strive to highlight the profound impact of Ayush practices on holistic health and wellness. We are ready to join the journey towards promoting Ayush principles, supporting practitioners, and ensuring that Ayush benefits reach each and every corner of the society. Together, let's build a healthier and happy nation. Now, I get into my duty of welcoming the esteemed dignitaries to the webinar. First of all, I welcome Dr. Arun Khere, President of Bharat Arogya Sanghadana, to our program. Welcome you, sir. Next, I'm extremely happy and honored to welcome Dr. Gaurav Pandey, consultant cardiologist of Lucknow, who is a very experienced and renowned cardiologist. We are very privileged to have you here, sir, in this webinar as a speaker. I wholeheartedly welcome you, sir, to this webinar. Welcome you, sir. Next, I welcome Dr. Sarvesh Tripathi, sir, National Head Coordination Cell BAS, to the function. Next, I welcome Dr. Ketan Daddal, Vice President and also Associate Professor Bal Roga, to the function. Welcome you, sir. I also welcome Dr. Ajay Kumar Singh, Vice President of BAS, and also today's speaker on the topic, Unique Experience in Cardiology. Welcome, Ajay, sir. I also welcome Dr. Swapnil Kaitwas, National Head Technical Cell, and today's speaker on the topic, Yoga in Prevention and Cure related to common cardiac causes. I wholeheartedly welcome you, sir. Next, I welcome Dr. Lalit about the National Ayurveda Day, who is going to speak about National Ayurveda Day. I also welcome Dr. Satyaprakash Chauhan, Organizing Committee BAS, to this webinar. Furthermore, I welcome Dr. Arvind Gupta, Secretary, Dr. Vijay Gupta, Secretary, Dr. Rupali, Dr. Vaishali, Dr. Sandeep Mishra, Dr. Gaurav Sharma, Dr. Aarti Singh, to this function. I happily welcome our coordinating committee members, Arunatha, Dr. Akhilesh, to this webinar. Last but never the least, I welcome all Ayush practitioners, BAMS students, agents, Ayush scholars to this webinar. We are very honored to have you all with us to share knowledge of cardiology, diagnostic features, and emergency management. We are excited to embark on this journey of learning, networking, and collaboration. I would like to take a moment to acknowledge the hard work and dedication of organizing committee and coordinating members to make this event a grand success. Tomorrow, we are going to celebrate our global health. I wish you all a very happy National Ayurveda Day. Let's make most of this opportunity to connect, inspire, and grow together. I once again welcome you all to this webinar. Thank you. Jai Hind. Thank you, madam. Thank you very much. And with these words, we will move ahead. And in the next step of the program, I will like to call Dr. Ketan, who will introduce about the BA. He will also introduce about the achievements of BAs. Dr. Ketan is a known person in the field of research and holding the responsibility of research functions in NUHS, a very reputed university in Maharashtra of health science.
He's Level also, किती after मला का? completing his degree, providing his services in the department of Balrog from more than पार्किंग 10 मध्ये लावा years. म्हटलं, नॉन पार्किंग मध्ये लावला. And you can get his services in the Radhika very Road la. renowned Nobel Hospital, Pune. He is also a research cell head in BAS and also vice president of Maharashtra. So, Dr. Ketan, please continue your session. Dr. Ketan, available? Maybe, sir, some technical issue. Dr. Ketan is rejoining us very soon. Yes, okay. So, as on the occasion of National Ayurveda Day, we have planned this seminar. From last few years, we can say, we are continuously hearing the cases of cardiac arrest or heart attack. This is a very big challenge, a very big problem for the country at present moment, because what is the exact reason we don't know, and we are looking many cases who are simply singing or dancing or even sitting or attending any function. Suddenly they are dying, and when we are reaching the hospital with the patient, doctor only declares that patient has been died. So in these type of the cases, this seminar become very important. So for the discussing these all issue, we have cardiologist Dr. Gaurav sir with us. So we will listen him. But first, I will again try to connect Dr. Ketan. If Dr. Ketan is available. Dr. Ketan, are you available? Yes, so moving on the next part, maybe due to some technical issue, he is not connecting at present. As soon as he will connect us, we will continue with him. Dr. Ajay, are you available here? I'm audible? Yeah, you are audible. Yes. Sir, good afternoon. Good evening, sorry. Oh, John. Good evening, sir. Good evening. We were waiting for you. I will like to introduce Dr. Gaurav sir with all our participants. Dr. Gaurav is a well-known cardiologist in North India, and most important thing, Dr. Gaurav has achieved his all degrees from the various part of countries. It means he's a doctor of all over India. Means his MBBS is completed from Chennai, and he's a top merit holder in the NEET examination. He chose his MBBS college from Chennai. Then after he came for the MD in GSVM Kanpur, and after completing the Kanpur, he has provided his services to the one of the most prestigious institute, medical institute of India, that is SGPGI. SGPGI is very well known institute for the medical. And after that, he went to Punjab and he provided services in Punjab. And after from the doing his job in Punjab, he went to Kerala again and achieved the DM degree of cardiology, the highest most degree in the field of cardiology. And the most important thing related to our Gaurav sir, he is not having the DM cardiology, but he is providing all the services related to the cardiac emergencies 24 hourly. I will quote a special thing here that in most of the colleges or most of the hospitals, you will see written word that we have all the facilities related to emergency, or we have ICU, we have some these facilities, those facilities. But once you are going there, you feel that after reaching there, his or her receptionist called to the doctor that doctor will come and he will see or she will see your patient. But in the case of Dr. Gaurav's setup, he has the full-fledged cath lab providing the cardiac services 24 hourly. Anytime
in the day, evening, night, anytime if you are having the cardiac emergency, you may immediately call to him and you will get all the facilities related cardiac emergency, angioplasty, angiography, cardiac bypass. Even in his setup, cardiac surgeries for the pediatric patient is also available. So this is a very a big proud moment for us that so renowned cardiologist Dr. Gaurav is with us. So good afternoon, sir. Are you hearing us? Hello, Gaurav sir, are you hearing us? Yes, thank you for that nice introduction. Thank you very much. Okay, is sir. my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. You are easily audible. Okay, So, sir, there are various practitioners. I can say him first-line practitioners. Most of the graduates who are practicing in different parts. So they are facing sometimes many challenging cases where they want to know what should be the primary treatment or how to refer, what are the main symptoms. After analyzing that, we need cardiologist, and the most important, how to understand where we have to refer that case, because there are a lot of hospitals saying we have all the doctors or all the facilities available there, but truly after going there we see that they are calling any doctor, but truly doctors are not present there. So I am asking their questions one by one. First question is, आफ्टर द वेव ऑफ कोरोना हम लोगों ने देखा है सर, कोरोना के बाद से सडन डेथ ड्यू टू कार्डियक इमरजेंसीज, पेशेंट्स गाते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, किसी भी एक्टिविटी मोड में हैं, सडन उनको डेथ हो जाती है और हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जनरली दे आर डिक्लेयर्ड एज ए डेड बॉडी. तो इन सच केसेस क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो कोरोना से लिंक करती हैं, या कोई ऐसी चीजें, आपका एक्सपर्ट गाइडेंस इस बारे में चाहिए कि हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं इन चीजों के? सभी को नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी ने हमको जो है यहाँ पे गेस्ट थोड़ा सा नॉइस में है, कहीं देख लीजिए सर. किसी चला स्टार्ट? यस सर, यस सर. हाँ, देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि एक कहावत है, धड़कनों का भरोसा नहीं. कई बार हम लोग ये पेपर में पढ़ते हैं कि भाई ये चल रहे थे और ये गिर गए या हॉस्पिटल में गए, लेकिन उसमें देखिए अगर कई बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स को पहले से बताया रहता है कि उनको कुछ बीमारियां हैं, और जो मेन सिम्टम्स है हार्ट डिजीज के, अगर कोई देख पा रहा है तो इसको देख पा रहे हैं, इज इट विजिबल? नहीं तो मैं बता देता हूँ. जो मेन सिम्टम्स हैं वो एक सीने में दर्द या जलन होना. जो हार्ट के मेन सिम्टम्स हैं, सीने में दर्द या जलन होना, सीने पे अगर दबाव लग रहा है किसी को, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये भी जैसे कई लोगों को लगता है कि भाई गैस बन रहा है, लेकिन कई बार जो गैस होती है वो हार्ट को जो चेस्ट पेन होता है कई बार पेट तक जाता है. तो लोगों को ये लगता है भाई गैस बन रही है, वो दवाई लेते हैं, थोड़ा बहुत ठीक होता है, फिर चलते रहते हैं, लेकिन उसका जो है वो क्लियरली किसी को दिखाते नहीं है. और फिर जब वो बहुत बढ़ जाता है तो एक सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, और उस समय उनको सही जगह सही टाइम पे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती. और दूसरा होता है सांस लेने में दिक्कत होना. अब जैसे सांस लेने की दिक्कत, अब आज ही मैंने 2-3 पेशेंट देखे, सांस लेने की दिक्कत पे वो बेचारे इनहेलर ले रहे थे बहुत दिनों से, और जब उनका इको किया तो उसमें पंपिंग कम थी. बात समझ रहे हैं आप? तो सांस लेने में दिक्कत होना वो चेस्ट के कारण भी हो सकता है और हार्ट की बीमारी में भी हो सकता है. अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो तो एक बार जरूर ईसीजी और इको जरूर करा के देखें, कहीं कोई इसको कार्डियक कारण से तो नहीं है. दूसरा होता है हाथ, कमर या गर्दन में दर्द होना. अगर बाएं तरफ के हाथ में जा रहा है, कमर में जा रहा है, और भी कहीं ऊपर तक जा रहा है, तो वो भी कार्डियक डिजीज के लक्षण हो सकते हैं. और पांचवा है कि आपको जो है पैरों में या तलवों में सूजन हो. बॉडी में अगर सूजन हो रही है, पैरों में है, तलवों में है, तो वो भी जो है हार्ट की बीमारी का एक उसकी और इंडिकेशन होता है. तो मेन चीज हमको ये 4-5 चीज याद है. तो चेस्ट में पेन होना, या इवन अपर एब्डोमेन. अगर किसी को भी बहुत दिनों से गैस बन रही, जो ठीक नहीं हो रही है गैस की दवाई खाने से, तो मैं जरूर कहूंगा एक बार ईसीजी को करा के देखिए, कहीं वो जो है हार्ट की बीमारी का तो नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है. दूसरा, सीने पे दबाव होना. कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे सीने पे ऐसा लग रहा है कि 10 किलो का भारी पत्थर रखा हुआ. सीने पे दबाव होना भी एक लक्षण है हार्ट डिजीज का. और सांस में दिक्कत लगे, सांस में भी अगर दिक्कत है तो इसका मतलब है कि उनको जो है बीमारी का एक वो इंडिकेशन है. और हाथ में, कमर में, गर्दन में
जबड़े तक, कभी कभी हार्ट डिजीज का पेन जबड़े तक भी जाता है। कई एक पेशेंट आया तो कहा सर हमारे जो है गैस सर पे चढ़ा हुआ है। अब गांव के पेशेंट आते हैं उनको नहीं पता चलता है, तो कहते हैं सर जी हमारा जो है गैस सर तक चढ़ा हुआ, हमको बस गैस का इंजेक्शन लिख दीजिए। वहां कहीं गया तो किसी ने कह दिया था भाई हार्ट की बीमारी है। तो ऐसे पेशेंट को भाई अगर आप इंजेक्शन दे के नहीं आराम मिलता है तो एक बार एंजियोग्राफी वगैरह करके देखना पड़ता है। और सूजन होना, ये जो 4-5 लक्षण है हार्ट के, ये हमको देखना है। और जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कोविड के बाद, देखिए अभी तक इस पे जो है करीब कोविड को गए 2021 के बाद कोविड का कोई वेव नहीं आया। लास्ट वेव 2020-21 में था, तो करीब 4 साल हो गए हैं, 4 साल होने जा रहे, 3-3.5-4 साल होने जा रहे हैं अब। तो इस पे कई बार जो है शोध हुआ है कि कोविड से डायरेक्टली नहीं है कोई। अब इसका क्यों आता है, क्योंकि मैं बताता हूँ जो हार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि पहला क्वेश्चन है कि हार्ट डिजीज कॉमन इंडिया में क्यों। इसका जो मेन लक्षण है जेनेटिक्स है, बात समझिए आप। इसके पहले आज से 200 साल पहले इंडिया में उतने हम लोगों के पास फेमिनाइंस होते थे, माने खाने को सबको फ्रूट्स नहीं होते थे। तो एक जो है हेप्टिक जीन थ्योरी चली थी कि जो जीन्स थे वो पहले कम खाने पे अपने आप को रख रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। अब जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अब देखिए आप सबके पास जो है ठीक ठाक पैसे हैं, खाना सरकार भी सबको खाना करीब 80 करोड़ खाना मुफ्त में दिया जा रहा है। तो ऐसे होता है, तो ऐसे कारण जो जीन्स अपने आप को मॉडिफाई किए। और इसमें ये थ्योरी आई है कि साउथ एशियंस में जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, उसमें जो है हार्ट की डिजीज का प्रेवलेंस ज्यादा है, 10 से 15% लोगों में रहेगा। तो अगर 100 करोड़ की आबादी है तो आप समझिए 15 करोड़ लोगों का हार्ट डिजीज रहना ही रहना, चाहे उनको कोविड हुआ हो ना हुआ हो, इंजेक्शन लगा हो ना लगा हो, ये एक चीज हो। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी झारखंड में करीब 1 महीने पहले अगर कोई पेपर उठाए तो वहां पे आपका ये हवलदार का या सीआरपीएफ में कांस्टेबल का वो भर्ती निकला। उसमें जो है 10 किलोमीटर की दौड़ में करीब नहीं तो 15-20 नौजवान जो है कोलैप्स हो। आप समझ रहे हैं, ये पेपर में अभी 1 महीने पहले में ही वहां पे भर्ती निकला था झारखंड, रांची में ही। उसके बाद सरकार को उसको 10 किलोमीटर को दौड़ को बंद करना पड़ा। बात यह है कि जनरल पॉपुलेशन में हार्ट डिजीजेज हैं। अब उनको जैसे कि अब करीब 100 करोड़ लोगों को कोविड का इंजेक्शन लगा था, करीब 95 करोड़ लोगों को कोविड का इंजेक्शन लगा था। तो उनमें से पहले से हार्ट की बीमारियां थी, वो केवल कोविड के ऊपर डाल देना, दैट्स नॉट ए गुड पॉइंट। और अभी तक शोध से कोई पता नहीं चला। जो आजकल जो हम लोगों को मेन चीज ये है कि हार्ट की बीमारियां हैं, लोगों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज यंग एज में हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या लोगों को बीपी रहता है। कई बार हम पेशेंट देखते हैं 210 तक 200 बीपी आते हैं। पेशेंट कहते हैं सर जी थोड़ा सा हेडेक था, हमारे बीपी चेक कर, हमारा बीपी 200 है, हमको तो कभी कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए वो तो खैर 200 बीपी था, वो आ गए। कई लोग को क्या 200 बीपी काम चलाते रहते हैं, पैरासिटामोल की टेबलेट ली चलते रहेंगे, बीपी का एक और बढ़ जाएगा तो या तो उनको ब्रेन अटैक होगा या हार्ट अटैक होगा। तो बात ये रहती है कि लोग कंटिन्यूअसली अपना मॉनिटरिंग नहीं करते, उनका शुगर अनकंट्रोल रहता है। कई बार हम लोग पेरिफेरी में जाते हैं, पेशेंट देखते हैं, पहली बार उसका अगर एंजियोग्राफी किया तो सारी वेसल्स ब्लॉक, तो उनका भी शुगर चेक करा तो शुगर 450, 500, HbA1c मोर देन 10। तो बात यह है बीपी शुगर का प्रेवलेंस ज्यादा है और वो ज्यादा लोगों में, उसके कारण हार्ट डिजीज और बढ़ रही है। एक ये है। और उसके बाद है इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस। अब सब लोग जो है मीडिया में, पेपर में, हर जगह हेल्थ अवेयरनेस है। आप भाई जाएंगे, चेक कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, टीएमटी टेस्ट होगा, सीटी एंजियो होगा, तो बीमारी है तो दिख। ये मेन कारण है इसका। कोविड से अभी तक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन पाया है। लेकिन हाँ, कोविड से इन्फ्लेमेशन था। इन्फ्लेमेशन कभी कभी कुछ हार्ट फैक्टर्स को ट्रिगर कर देता, लेकिन ये वो भी उनमें जिनमें की संभावना ज्यादा है, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज पहले से है, इन्फ्लेमेशन पहले से उनको कोविड हुआ, उसके कारण से इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो उनको हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है वैक्सीनेशन। सर जैसा कि आपने बताया अबाउट द अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, कुछ स्पेसिफिक हार्ट रिलेटेड टेस्ट जैसे ईसीजी या एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग सुनते हैं, उसका एग्जैक्ट लिंक क्या है, या 2D इको, इस तरह के टेस्ट किस उम्र से करा लेने अपने लिए अच्छे रहते हैं, और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितने समय पर करवाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा था। देखिए अब जो है लिपिड गाइडलाइंस, इंडियन लिपिड गाइडलाइंस आई हैं, वो ये कह रहे हैं कि 20 साल की उम्र से आपका लिपिड का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए एट फ्रॉम द एज ऑफ 20 ईयर्स।
मेल्स में, फीमेल्स में 25 years। और दूसरा जो है, आपको जब भी जो 5 लक्षण हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना या सीने पे दबाव लगना या फिर आपको लग रहा है पैरों में सूजन आ रही है या आपको दिक्कत लग रही है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आप जैसे अगर सुबह जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, आप सुबह करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले जाते हैं, लेकिन आप एक दिन मॉर्निंग वॉक पे गए, आप 1 किलोमीटर में थकने लगे। बात समझ रहे हैं आप जो भी डेली रूटीन कर रहे हैं, अगर उसमें आपको दिक्कत शुरू हो गई तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत बढ़ रही है, उसको फिर आप तुरंत उसका जाके आप चेक कराएं। हार्ट की बीमारियों में जैसे हम लोग कार्डियक पैकेज करते हैं, ईसीजी, इको, लिपिड प्रोफाइल और टीएमटी, ये 4 मेन टेस्ट, ईसीजी, इको, लिपिड प्रोफाइल और टीएमटी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आप थायराइड और रैंडम ब्लड शुगर, ये 5 टेस्ट जरूर करा लें। थायराइड इसलिए क्योंकि हार्ट की बीमारी में कई लोग पैल्पिटेशन आता है या हार्ट रेट ऊपर नीचे रहता है, तो थायराइड की बीमारी से वो हो सकता है। और शुगर इसलिए क्योंकि अगर शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है तो उसको बिना कंट्रोल किए अगर हार्ट की दवाइयां देंगे तो पूरा हार्ट पे अच्छा इफेक्ट नहीं है। ये 5 चीज हमको चेक करना है और इसका फ्रीक्वेंसी ईयरली वंस होना चाहिए, ईयरली वंस होना चाहिए। एंड अगर आपको जब भी सिम्टम्स लगे तो कराना जरूरी है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक तो ईयरली वंस होना चाहिए। जी सर, अभी सर कुछ दिनों से सीपीआर की ट्रेनिंग स्पेशली मेडिकोज या लिटरेट लोगों को भी दी जा रही है कि सडन अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट अगर आपको मिलता है तो एटलीस्ट सीपीआर प्रोवाइड करें। क्या प्राइमरी हेल्थ सेटअप के रूप में, जैसे कोई भी पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो पेशेंट को लेके जो भी वहाँ की सराउंडिंग की मॉब है, भीड़ है, वो तो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल मिलता है उनके पास पहुँचते हैं। कई बार प्राइमरी सेटअप में कार्डियक वाली फैसिलिटीज नहीं रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में वहां पे डॉक्टर क्या कुछ करके आगे कार्डियोलॉजिस्ट के लिए रेफर करने का समय रहता है उनके पास? कुछ और कर सकते हैं अदर देन सीपीआर, या इमीडिएट जितनी जल्दी हो सके किसी कार्डियोलॉजी सेटअप में ही जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, आपको जो है सबसे पहले अगर किसी को अगर कोई कोलैप्स हुआ है तो आपको चेक करना है कि उसमें कॉन्शियसनेस है कि नहीं। अगर कॉन्शियस नहीं तो आपको सीपीआर तो स्टार्ट करना ही करना है, और अच्छा आपको कम से कम जो है 10-15 मिनट सीपीआर दें। अगर हार्ट का पेशेंट है जनरली वो 2-4 मिनट में थोड़ा रिवाइव हो जाता है। उसके बाद जैसे कि अब एम्बुलेंस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा है, और अब यूपी में भी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अब अगर आप जाएंगे यहाँ पे दुबग्गा साइड जाएंगे तो लाइन से कई हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहां पे आपको जो गाइडलाइंस में कि आप जैसे ही जाके ईसीजी जरूर निकलवाएं 10 मिनट्स के अंदर। आपका प्राइमरी होना चाहिए कि ईसीजी जरूर निकल जाए, क्योंकि कहीं भी अगर आप फोन भी करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट को, या मेरे को भी फोन आते तो मैं कहता भैया ईसीजी तो भेजो एक बार देखें, क्योंकि हमको ये देखना जरूरी है कि कहीं वो ब्रेन अटैक है कि हार्ट अटैक है। कई बार मान लीजिए लोगों को ब्रेन की नस फट गई, उस कारण से अगर उनको अगर मान लीजिए उनको जो है वो हुआ है, अगर वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू ब्रेन स्ट्रोक है कि हार्ट अटैक है, तो उसमें अगर मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक है तो उसकी दवाइयां, उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, उसका सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, न्यूरोसर्जरी जाएगा, न्यूरोलॉजी देखेगा। अगर हार्ट का है तो उसको फिर कार्डियोलॉजिस्ट देखेगा। तो एक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप 10-15 मिनट की कोशिश करके उसका एक ईसीजी करा। और अगर अब सारी जो कंप्यूटराइज मशीन में भी अपने आप आ जाता है अलर्ट कि भाई ये जो है एक्यूट एमआई है या एबनॉर्मल ईसीजी, उसको फिर आप ईसीजी को भेज के, और उसको अगर है दर्द तो आप उसको इकोस्प्रिन, क्लोप्लेट, अटोरवास्टेटिन दे सकते हैं। और अगर उसको दर्द है तो एक सॉर्बिट्रेट 5 mg या 10 mg दे के नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास उसको ले जाए। आप इतना कर, अगर इतना कर लेंगे तो आप कम से कम 50% लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। और दूसरा, अगर उसको कहीं से हेपेरिन मिल जाए या क्लेक्सिन मिल जाए, जो कि जनरली बिना ईसीजी देखे नहीं देना चाहिए, तो भी आप वो एक्स्ट्रा एड दे सकते हैं। ओके सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, यस यस यस, अगला क्वेश्चन बताइए। और नेक्स्ट, ओके सर। तो ये दोनों चीजें रिगार्डिंग कार्डियक अरेस्ट और एमआई से रिलेटेड थी। एमआई के लिए आपने जो इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और ये एटोवेस्टेटिन, इनका कॉम्बिनेशन देके एट अर्लीस्ट कार्डियोलॉजी के लिए रेफर करना चाहिए। अब यही सबसे सर करा लें, एक सबसे पहले एक बार ईसीजी तो यस यस सर। अब यहाँ पे सर एक क्वेश्चन बनता है कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सभी जगह लगभग ये शो होता है कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आईसीयू अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कई बार अंदर जाने के बाद में रियलिटी में डॉक्टर्स को भी कॉल करके वो बुलाते हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जिनके बेस पे हम समझ सकें कि एक रेफरल सेंटर सही कैसे सेलेक्ट करें कि हाँ यहाँ पे भेजें तो इमीडिएट सारी व्यवस्थाएं उसको मिल जाएंगी? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए, जो आप स्क्रीन ये कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी कोई डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है या जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा है,
जैसे कि अगर आप पेल्सन में देखें तो सबसे बड़ा लेगा कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। जहां पे अगर कैथ लैब की सुविधा है तो वहां पे डीएम कार्डियोलॉजिस्ट होगा ही होगा मोस्ट प्रॉब्लम। तो आप जो है वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि भाई साहब आपके हॉस्पिटल में कैथ लैब की सुविधा है कि नहीं। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप जो भी आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जाए वहां पे ईसीजी कराएं, वहां पे आप फर्स्ट एड कराएं, माने इकोस्पिन जब दिलवाएं, ईसीजी कर लें, सॉर्बिट्रेट कर लें अगर हो सके। क्योंकि अगर वो फोन भी करेगा तो किसी अगर अच्छे डॉक्टर को फोन करता है तो भी ये बोले भाई आप इनको एक बार जो है लोडिंग डोज करा दें, उसके बाद आपको जहां ले जाना वहां ले जा सकते हैं। हमारा काम यह है कि पेशेंट को तुरंत दवाइयां मिले। उसके बाद अगर आपको अच्छा सेटअप देखना है तो भाई उसके लिए आपको कैथ लैब की फैसिलिटी चाहिए, तो आप उनसे पूछे भाई कैथ लैब की फैसिलिटी है कि नहीं, उस हिसाब से आप उनको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ओके सर, कैथ लैब एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कार्डियक फैसिलिटीज वहां पे मिल जाएंगी। हाँ ओके सर, एक ये क्वेश्चन सर बार बार आता है, ये तमाम प्रैक्टिशनर की तरफ से भी है, ये सेल्फ हेल्थ को लेके है कहीं ना कहीं। जब भी कभी ऑयल, कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल की बात हम लोग करते हैं, जब भी बात आती है तो उसमें हर एक कंपनी ऐड कर रही होती है कि कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा है, कार्डियक के अच्छा है। कोई ऐसा क्राइटेरिया जिससे हम असेस कर सकें कि बेटर ऑयल कौन सा है हेल्थ के लिए? हाँ, देखिए उसमें आपको कंटेंट्स में जाके देखना होगा कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है। अगर पॉली अनसैचुरेटेड जैसे कि पीयूएफए, अगर पीयूएफए ज्यादा है तो माने कि दैट इज मोर बेटर फॉर हार्ट। अगर मोनो सैचुरेटेड ज्यादा है उसमें फैट्स तो दैट इज नॉट वेरी गुड। अभी इस पे एक WHO में एक स्टडी हुआ था तो ये कहा गया था ऑलिव ऑयल इज ओके, ऑलिव ऑयल इज गुड फॉर हार्ट। एक दूसरा आता है राइस ब्रान ऑयल, ये दोनों, ऑलिव ऑयल हो गया आपका, राइस ब्रान ऑयल हो गया, ये दोनों ठीक है, सनफ्लावर ऑयल भी ठीक है, और आपका ये ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, ये 3-4 जो तेल हैं ये ठीक है। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बॉडी में डेली केवल अलाउड है 2 चम्मच, 2 टीस्पून ऑफ ऑयल, माने 10 ml। बात समझिए यार, ओके मेरी सर, बात आप समझ तो रहे? जी सर, जी माने सर, कि आप तो आपको पूरा दिन 10 ml ऑयल में निकालना है। अगर आप 10 ml से ज्यादा बॉडी में ऑयल जाएगा, चिकनाई जाएगी तो कुछ बढ़ेगा तो हार्ट की संभावना बढ़ेगी। चाहे आप ऑलिव ऑयल लें, चाहे आप राइस ब्रान ऑयल लें, चाहे मूंगफली का तेल, जो बेस्ट आप ऑयल भी है आपको 10 ml से ही, और 10 ml आपको ऑयल लेना है और दिन भर में आपको 5 ग्राम शुगर लेना है और 5 ग्राम नमक। अगर आपका इन 3, ये आपकी लिमिट्स है। अगर आप इन 3 चीज से लिमिट से ज्यादा जाते हैं तो जैसे कि सर पर पर्सन और पर पर्सन ना सर 10 ml? हाँ पर पर्सन भाई, हाँ एक आदमी का यस सर, यस पर पर्सन। हाँ अरे भाई, जैसे कि स्पीड लिमिट रहती है, अगर आप पूर्वांचल पे जाएंगे तो स्पीड लिमिट 100 की है, अगर आप 100 से ऊपर जाएंगे तुरंत चालान कटेगा। आप बात समझ रहे हैं? तो वैसे ही अगर कोई भी आदमी 10 ml से ज्यादा ऑयल ले रहा है दिन भर में तो उसका हार्ट डिजीज होने की संभावना, बात समझिए आप, या अगर वो 5 ग्राम नमक ज्यादा ले रहा है, 5 ग्राम से ज्यादा नमक ले रहा है, या 5 ग्राम शुगर ज्यादा ले रहा है, 5 ग्राम से ज्यादा पर पर्सन, बात ये। ओके सर, आप तो कंट्री के लगभग तीनों ट्रेडिशन में रहे हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ में सरसों का तेल, तो साउथ में कोकोनट ऑयल, और पंजाब में भी आप रहे हैं, वहाँ तो बटर वगैरह, मक्खन वगैरह, हर तरह हाँ। की सारी चीजें ली जाती रही हैं। क्या इसमें ऐसा कुछ है कि जो जिस ट्रेडिशन में या कंटिन्यूसली जहाँ का ऑयल यूज कर रहा है उसके लिए वो सूट करता है? आई मीन साउथ इंडियन के लिए कोकोनट ऑयल बेटर है, नॉर्थ इंडियन के लिए ये अपना मस्टर्ड ऑयल बेटर है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, देखिए उसमें मैं उसी पे आ रहा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए जो चीज अच्छी हो सबके लिए अच्छी, बात समझिए आप, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, चाहे वो ईस्ट अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो। जो WHO की स्टडी है उसमें ऑलिव ऑयल को अच्छा दिया गया है। और दूसरा एक होती है मेडिटेरेनियन डाइट, अगर कोई गूगल पे जाके सर्च करे तो मेडिटेरेनियन डाइट स्टडी हुआ कि भाई कहाँ के लोग सबसे अच्छे रहते हैं, कहाँ पे जो है हॉस्पिटल विजिट्स या हार्ट डिजीज कम है। तो मेडिटेरेनियन एक जगह है फ्रांस के पास, उसको पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां की डाइट जो है अच्छी बताएगी। तो वहां पे देखा गया लोग वहां पे ऑलिव ऑयल ज्यादा यूज करते हैं, माने वो खाने में ऑलिव ऑयल ज्यादा यूज करते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर आप लिमिट में लेके चलेंगे तो दैट विल बी गुड। अब भाई अगर आप जो है हफ्ते में एक ही दिन समोसा खाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, अगर आप डेली समोसा खाएंगे तो इट विल बी हार्मफुल। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप जो है लिमिट में काम करें। स्पीड लिमिट, जैसे स्पीड लिमिट बनी है, अगर स्पीड लिमिट से ज्यादा जाएंगे एक्सीडेंट होने की संभावना है, वैसे बॉडी में लिमिट बनी हुई है कि अगर आप
2 चम्मच तेल, मतलब कि अगर आप 10 ml से ज्यादा तेल डेली खाएंगे तो उसमें हार्ट होने की संभावना है। बात ये है। इसी तरह आपको नमक कंट्रोल में रखना है, 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना है, 5 ग्राम से ज्यादा शुगर दिन में, एक दिन। 1 मिनट बस, एक इंपॉर्टेंट कॉल। हाँ दुर्गेश। हेलो। हाँ दुर्गेश, 1 मिनट बस। सर वो ब्लड आ गया है। हाँ तो गर्म करके लगा दो यार, मैं मीटिंग में, ब्लड को गर्म करके लगा दो धीरे धीरे, क्लासिक्स पे। ठीक है, ओके ओके। हाँ सॉरी, सीसीयू से कॉल था। हाँ बताइए। Okay, sir. Okay, sir. Next question is related to disease that is known as hypertension. ये एक ऐसी डिसीज है जो लगभग अब आज की जनरेशन में ऐसे मिल रही है जैसे कि पुरानी जनरेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलती थी। तो ये जो हमारी हाइपरटेंशन है, इसके लिए सर एक सामान्य सी चीज मानी जाती है कि क्या एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो लाइफ लॉन्ग लेना ही है, या प्रिकॉशंस वगैरह लेके डोज कम करना या बंद करना, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, एक स्टडी थी अभी, लैंसलेट की स्टडी है, लैंसलेट बहुत अच्छा जर्नल है, उसमें जी, स्टडी जी, हुआ सर। था कि इंडिया में करीब 30 करोड़ हाइपरटेंसिव हैं, 30 करोड़, और इंडिया में करीब 10 में से 8 लोगों को हाइपरलिपिडीमिया होने की संभावना रहती है। माने एज ए इंडिया ये जनरलाइज्ड टर्म है, उस स्टडी में पाया। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन आया कि भाई हाइपरटेंशन जो है अगर किसी को है, एक तो सबसे पहले हमको कट ऑफ देखना है। हाइपरटेंशन तब डेफिनेशन जो लेटेस्ट है कि 140/90 से ज्यादा होगा तभी हाइपरटेंशन हो। अगर 130 है तो रेस्ट ब्लड प्रेशर कहेंगे उसको। अगर आपका 140 से कम है बीपी, तब आप उसको लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना है आपको? तेल कम करना है, शुगर कम करना है, नमक कम करना, बहुत इंपॉर्टेंट, नमक आपको कम करना। नमक भी आपको 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना, एक चीज जान जाइए आप। और उसके बाद आपको डेली एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज में आता है आपको डेली एक्सरसाइज करें, कम से कम 2 किलोमीटर चलें, नहीं तो फिर 10,000 स्टेप्स चलें। आपको अपना मोटापा कम रखना है, आपका बीएमआई जो है वो 24 से कम होना चाहिए, इंडियंस में 24 से कम होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स। और वेट आपका जो है, अगर आप नॉर्मल हाइट तो 70 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको कंट्रोल में रखनी है। एक चीज जहां रही, आपके जो सवाल है कि अगर ब्लड प्रेशर हो गया और दवाई शुरू हो गई, हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो दवाई इतने दिनों से ले रहे हैं, हम दवाई अब छोड़ दें क्या? भाई देखिए, आपका दवाई के कारण कंट्रोल। मैं आपको एक चीज बस दिखाता हूँ, मैं अगर चश्मा उतार दूं तो मेरे को कम दिखाई देगा, मैं अगर चश्मा पहनूंगा तभी मेरे को सही दिखाई दे। तो आप ऐसे समझिए कि भाई आपने दवाई खा के अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया है ताकि आपके हार्ट पे असर ना पड़े, किडनी पे असर ना पड़े, ब्रेन पे असर ना पड़े। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका इसका मतलब है कि आप हेलमेट हटा के फिर आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर बीपी क्योंकि एकाएक शूट होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही कहता हूँ जिसका हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है वो भी अपनी दवाई एकाएक मत छोड़े, डॉक्टरी सलाह ले और कोशिश करे। जनरली दवाई हम लोग पूरी बंद नहीं करते हैं क्योंकि वो दवाइयों से कंट्रोल्ड है हाइपरटेंशन। ओके सर, एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिशनर की साइड से है कि जो क्रॉनिक केसेस हैं, जैसे 60+ एज के लोग हैं और उनका ब्लड प्रेशर 8-10 साल पुराना हो चुका है, ऐसे में क्या प्रिकॉशन के साथ उनके एंटी हाइपरटेंसिव के साथ इकोस्प्रिन वगैरह स्टार्ट करना सेफ माना जाएगा, या कोई अदर कोई क्राइटेरिया? नहीं देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इस पे भी स्टडी हुई थी। इकोस्प्रिन ऐसे ही किसी को भी नहीं दिया जाता क्योंकि इकोस्प्रिन कैन कॉज ब्लीडिंग, बात समझिए आप। इकोस्प्रिन एंटी प्लेटलेट है, वो पेट में जाके गैस ज्यादा बनाती है और ब्लीडिंग भी कराती है। तो उसको अगर आप ऐसे ही, वो कोई चूर्ण नहीं है, ना ही च्यवनप्राश है कि उसको कोई, वो दवाई है, उसके अपने इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। अब उसको देना किसको है? अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की नली में ब्लॉकेड है तभी देना है। अननेसेसरी इकोस्प्रिन देने का कोई बहुत फायदा नहीं है, उससे ब्रेन ब्लीड हो सकता है, पेट में ब्लीड हो सकता है, दिक्कत बढ़ सकती है। तो इकोस्प्रिन देने के पहले आप अपने से न दें, कार्डियोलॉजिस्ट क्या एक बार ओपिनियन ले तभी। मैं बस ये कहना चाहता हूं, अपने मन से इकोस्प्रिन। एक क्वेश्चन और है सर, इसी हाइपरटेंशन से ही रिलेटेड। अभी यंग पॉपुलेशंस में जो आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं स्पेशली, या जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, उनमें ज्यादातर अपर लिमिट के पास ही ब्लड प्रेशर मिलता है, जैसे 130 to 40 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नियर टू 90 रहता है। तो ऐसे में मेडिसिन शुरू करना चाहिए, या उनकी स्ट्रेस्ड लाइफ के कारण है तो कुछ और चीजें यूज की जा सकती हैं? देखिए, अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है, सुबह शाम मॉनिटर कीजिए।
अगर आप, मैंने आपको कहा अगर आपका 140 पार कर जा रहा है ब्लड प्रेशर, मोर देन 140 है, तब आपको लेना पड़ेगा दवाई। अगर 140 से कम है तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, स्ट्रेस को कम करें, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस को कम करें, चीनी को कम करें, लिपिड को कम करें, और आप नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लें, जो कि बहुत मैं भी 6 घंटे ज्यादा नहीं ले सकता, कई बार फोन आ जाते हैं, नहीं कर सकते भाई। अगर आप बिजी हैं तो भाई आपको, आप जिस स्टेज पे हैं उसका आपको साइड इफेक्ट्स देना पड़ेगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बात यह है कि भाई आपको काम करते रहना है, आप अपना बस ये जो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं। जो मॉडिफाइबल रिस्क है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क क्या है? स्ट्रेस कम कर लें, मोटापा कम कर लें, शुगर कंट्रोल कर लें, बीपी अगर ज्यादा है तो आप बीपी दवाइयों से कंट्रोल कर लें, लिपिड अगर ज्यादा है तो आप खान पान में चेंज करें, अगर वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर आप जो है उसको दवाइयों से भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ दुर्गेश सर, ज्ञान चंद का ऑर्डर नहीं पड़ा अभी। और उसका जो चल रहा था, देखो पांडे जी के यहाँ से जो चल रहा है वो चलने, तो मैं आ रहा हूँ, पर बस मैं मीटिंग में मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। अच्छा। हाँ। सर वन क्वेश्चन लास्ट रिगार्डिंग टू कोलेस्ट्रॉल। हम्म। कोलेस्ट्रॉल का माइल्ड लेवल पर बढ़ना, आई मीन 220 30 लगभग इस रेंज पर हो, तो क्या स्टैटिन्स के साथ शुरुआत करना अच्छा रहेगा? पिछली कुछ स्टडीज में स्टैटिन्स की साइड इफेक्ट्स के बारे में काफी चर्चा हुई कि इनके साथ डीएम का रिस्क रहता है या हाइपरटेंशन का भी रिस्क रहता है। तो क्या स्टैटिन्स को यूज करना कैसा इसमें आपका गाइडेंस रहेगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए स्टैटिन्स को, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि उसको जो है, कभी कभी क्या होता है, अगर हम रात को ज्यादा हैवी फैटी मील लिया है, कहीं पार्टी में गए हैं, तो उसके बाद अगले दिन सुबह अगर आप कराएं तो बढ़ा हुआ रहता है। मैं ये कहता हूँ पेशेंट्स को कि एक हफ्ता वो नॉर्मल जैसे कि सादा भोजन खाएं, एक हफ्ते बाद फिर से एक बार लिपिड प्रोफाइल अपना दूसरी लैब में या लिपिड लैब में रिपीट करा के दें। अगर रिपीट में ही बढ़ा रहता है, जो नॉर्मल जो लेटेस्ट लिपिड गाइडलाइंस है इंडिया की, उसमें आपका होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल 220 से कम, लिपिड जो एलडीएल है, जो कि हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल, वो 100 से कम होना चाहिए। अगर वो 100 से ज्यादा है और उनको बीपी भी है, शुगर भी है, हाई रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है, फैमिलियल हिस्ट्री है, माने कि फैमिली में पिताजी को भी हार्ट अटैक आ चुका है, माताजी को भी है, नाना नानी को भी था, तो उनको हम लोग कहते हैं भाई कि एक बार आप जो है, अगर आपका डाइटरी चेंजेस से कंट्रोल हो जाता है 1 महीने में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उनको अटोरोस्टेटिन स्टार्ट करते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है तो उनको हम लोग देते हैं। जहां तक बात रहा अटोरोस्टेटिन दवाई का साइड इफेक्ट, देखिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड बहुत ज्यादा इंडियंस में साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। 1-2 साइड इफेक्ट है, मसल्स में पेन होता है कुछ लोगों को डिमेंशिया हो सकता है, लेकिन ये सब बहुत रेयर है, लेस देन 1% लोगों। तो हम तो यही कहते हैं आप उसको खाएं, उसका जो साइड इफेक्ट है रेयर है, दैट इज वेरी रेयर इन 1 or few people ओनली, और बाकी लोगों में अच्छा फायदेमंद करती है, तो आप उसको दे सकते हैं अगर उसका कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल्ड है तो। ओके सर, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप हमारे प्रैक्टिशनर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आपने कुछ साइंस बताया अलार्मिंग, वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए, चेस्ट में कंप्रेसिंग पेन होना या सांस फूलना डिस्निया जैसा है, या लोअर लिम्स में कहीं स्वेलिंग वगैरह मिलना, इस तरह की कोई चीज़ें अगर आती हैं, नोट डाउन होती हैं, तो इमीडिएट ईसीजी वगैरह कराना है। ईसीजी कराने के साथ साथ एक एनुअल चेकअप, जिसमें आपने 2D इको, टीएमटी और लिपिड प्रोफाइल के लिए भी रिकमेंडेशन की है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिशनर्स के लिए आपकी तरफ से कोई एक मैसेज? हाँ, सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉडी जो है सबको एक इंडिकेशन देती है कि दिक्कत अगर हो रही है उसको, जैसे कि जो सिम्टम्स बताए आपको, अगर किसी को भी ये दिक्कत है तो एक बार उसका जरूर से उसका सही जगह पे पूरा चेकअप कराएं, ईसीजी, इको, टीएमटी कराएं। और दूसरा ये कि सिम्टम्स अगर जब भी आए तो वो जरूर देख लें कैसे आ रहे हैं। अगर जैसे किसी को गैस बन रहा है, अगर उसको पहले जैसी ही गैस है तब तो ठीक है। कोई कह दे नहीं भाई अब ये गैस जो है अनकंट्रोल्ड है, पहले जैसी नहीं है, तो उसको माने कि इसका मतलब कि कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है उसको। और आप जो है हमेशा ये ऑब्जर्व करें कि आप पहले जो काम करते थे, अगर वही काम करने में आपको दिक्कत हो रही, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कहीं ना कोई चीज डिफेक्ट है, उसको आप जरूर जांच कराएं और दिखाएं। जी सर, अगर इमरजेंसी में कांटेक्ट करना हो आपकी तरफ से, क्या कोई नंबर या मेल या कोई ऐसी चीज उपलब्ध हो सकती है जो हम प्रैक्टिशनर्स को शेयर कर दें कि जरूरत पड़ने पर इमीडिएट इस नंबर पे या मेल पे कांटेक्ट किया जा सकता है कार्डियक इमरजेंसी? मैंने आपको शायद अपना कार्ड भेजा था, मैं आपको फिर से कार्ड भेज देता हूँ।
जी सर, तो प्रैक्टिशनर्स के लिए हम उसको इश्यू कर देंगे, तो उस हाँ, पर कार्ड आपसे आप कार्डियक इमरजेंसी केस में कम्युनिकेट हाँ कर सकते कोई हैं। कोई ओके ओके थैंक ओके, थैंक यू सर, आपने इतना अमूल्य समय हम लोगों को दिया और बहुत सारी हमारी क्वेरीज का समाधान किया। और जैसे भी आपकी गाइडेंस की हमें जरूरत रहेगी, हम आपको फिर अप्रोच करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी यू मच। वेरी मच। मैं अब मीटिंग छोड़ रहा हूँ, एक दो पेशेंट को देखें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Our next speaker, I will like to call Dr. Ajay sir. Hello, am I audible? I think many participants have unmute their speaker. Kindly mute their speaker. काफी वॉइस आ रही हैं पार्टिसिपेंट्स में। डॉक्टर आशुतोष, आई थिंक काइंडली म्यूट कर लीजिए। जी जी। यस, डॉक्टर अजय, हेलो। Yes, am I audible? Yes, Dr. Ajay Am I audible, doctor? Yes, Dr. Ajay, you are audible. Dr. Ajay are available with us at present. He is a known professor of Panchkarma from the Government Ayurvedic College, Trivandrum. He is also the Vice President of Bharat Arogya Sangathan. He is continuously practicing from more than decades, and he has some very good experiences in the field of cardiology. We are looking at many times some technicians are blindly doing Hridayavasti or Samvirechan or some kind of recommended old tradition medicines like Arjuna in each and every patient. So these are not practically applicable for every patient. So here Dr. Ajay is available to tell us about the practical aspect of Ayurveda and Panchkarma in the field of cardiology. So sir, are you available? Am I audible, doctor? Yes, sir. Please continue your session. Hello. Yes, sir. Continue your session. Please continue. Dr. Ajay, are you hearing me? There may be some technical issue. We are hearing him, but there may be some internet problem. Hello. Now, yes, Dr. Ajay, are you available? Hello. Yes, I'm audible now. Yes. Now you are audible. Am I audible now? Yes, sir. Continue. Thank you, Dr. Chauhan. And excellent session was done by Dr. Gaurav. Thank you, sir, for giving your invaluable time. We can't get that much information, so such short time we get a very informative session by Dr. Gaurav. As the Dr. Gaurav had indicated some few points, I will go through that. That he already told that at present what we are getting the heart disease in Ayurveda, we call it as Sansarpanotjanya Vyadhi, coming under the Sansarpana. Because as a doctor told that previously it was like that the persons were not getting proper food, and now the genes which are now changed, getting food which are rich in the nutrients, or you can say the comparatively more fatty and other fried items we are taking on our daily basis in our daily food. So we have to cut down that Sansarpana.
and we have to do the uptarpana. And where the panchkarma comes, the panchkarma itself shows that it's a type of langan. In the langana or in the uptarpana, we can say that Chatusprakara Sanshuddhi has already told by our acharyas. Am I audible to everyone? Yes, sir. You are very easily audible. Voice is very clear. Okay. You are audible, boss. Thank you. Thank you. So, few points are there because I am here to tell something about the Ayurveda and Panchkarma. So, I will start with the basic concepts of Hridaya or heart in the Ayurveda. So, the preparation or you can say the formation of heart occurs with the Shonit Kaf Prasadam Hridayam. As it is told in our Samhitas that the main ingredient, the sara of the Shonit is blood and Kapha is the heart. The sara of Shonit and Kapha is heart. So, what Shonit does is a functional and what Kapha is structural. So, because of the Rakta, the functional deformity occurs, and because of the Kapha, it's a structural deformity occurs, and which Srotas are involved in that? That is the Pranava Srotas, Rashva Srotas, and Raktva Srotas. So, these three Srotas are involved, and we can say that now we will come on the few things that the first and foremost thing for the prevention of the heart disease is the lifestyle modification. But as Dr. Gaurav sir has pointed very well that we have to change our lifestyle, we have to change our patterns of working, we have to change our daily routine, we have to take proper sleep. These things, very fine points had indicated by Dr. Gaurav. It was a excellent point because we have to work on the prevention because our first and foremost motto in the Ayurveda is that to prevent the disease. So few basic things are there, and since I have to tell about the Panchkarmas, I told that Chatusprakara Sanshuddhi, 4 types of Sanshodhanas, which are the Vaman, Virechan, Vasti, and Nasyan. These 4 type of Sanshodhanas in which especially for the heart diseases, mostly the Vaman is contraindicated. So, in the patient of heart disease, whenever you are taking a patient for the Panchkarma and even for the Panchkarma and for the Vaman purpose, you have to rule out any cardiac disease. If any type of cardiac disease is there, you have to take care or you have to avoid such type of patient for the Vamana. Then it's the Virechana. Virechana is very much important and very much crucial for the a heart disease patient. There you have to select the proper medicines because few medicines are there which can increase the palpitation. So you have to take care of that medicines. There I can give some example like the Ixavedirus sometimes creates the palpitation and sweating. So you have to take care when you are using for the Virechana purpose. If you are using Ixavedirus, you have to take care because in the such type of because the patients of the heart and other such type of patients are coming under the Mridu. You can go for the Mridu Virechana, or then it's coming the Vasti. For the Vasti, it's a very important. Vasti is the Lekhan Vasti. In such cases where the hyperlipidemia is there, you can use the Lekhan Vasti, where Triphala is being used, and Triphala is a very good, you can say a Lekhan property, having very good Lekhan properties. You can use the Kutiki, that is having a very good Lekhan properties. You can use the Gomutra, that is having very good properties. So such type of ingredients can be used in the Lekhan Vasti. And Rakt Mokshan, you know, the Rakt Mokshan has been used from even in the other systems also for in the emergency condition of the hypertension. There you can remove the blood and the hypertension, the pressure of the patient drops very suddenly, but it's a temporary procedure. So you can go for the Rakt Mokshan also. So these are the main Panchkarmas what we perform in our patients. There you have to take care. You have to take proper history. You have to take the proper examination. You should take the blood reports related with the heart, as doctor told that you have to perform that, and then after you have to take the patient for the Panchkarma procedure. Then coming to the external procedures, you can opt for all the maximum external procedures which are doing for the prevention purpose. It's very good. You can
opt for the patient for external procedures, but for the internal procedures, for the Virechana, for the Vastif, for the Vamana, you have to rule out the any type of cardiac disease, and according to that, you have to select the medicine for the Panchkarma. Then in our practice, we use few very medicines we use in the practices, like the one, because the in a Trimarmiya Adhyay, the Rog was there, and in there one Krishnadi Churn has been used by the our Acharya. That is very much used in the patient of CAD, which is induced by the ISD. Means because for the low ejection fraction, you use the Krishnadi Churn. Krishnadi Churn is the combination of Haritiki, Vacha, Rasna, Shunthi, then Shati and Pushkar Mood. These are the ingredients of that. Then as in Ayurveda, we can use the Kushman Saras as the blood thinner because it is having very good property to release decrease the lipid element from the blood. Then garlic is been used from the long time for same the purpose, and then Jahar Mora Khatai Pest is also been used for the blood as a blood thinner in the Ayurveda. So we can use such type of small medicines for the prevention purpose and for the patients also. Then in the case of hypertension, one very practical and very experienced Vaidyas has been used, that Ras Sindoor with Sarpagandha Churn. In that, Ras Sindoor is only 125 mg and Sarpagandha Churn is 1 gram. In that, patients which are raised diastolic, in that patient, you can use Ras Sindoor with Sarpagandha Churn, and Halatrikadi Quath with Pushkar Mool Churn you can use for the raised blood pressure hypertension cases of the patient. Then one very good medicine available in the Ayurveda, but the quality of the medicine should be very good. Then you can get a very good result in the case of palpitations. In palpitations, Nagarjuna Ras, a single ingredient is there, that is the Sahasrapati Vajrabhak Bhasma with the Bhavana of Arjun. If this medicine has been prepared in the good SOPs or in the GMP pharmas, you can use it, and it's a very good and proven result in the case of that palpitation cases. And then where the vegetations are found in the heart diseases, in rheumatic fever you can say, in that Sarpunkha with Loknath Ras, Sarpunkha Swaras, Sarpunkha Mool Swaras with the Loknath Ras has been used by traditional Vaidyas. These what I am telling is the very much commonly used medicines by the traditional Vaidyas or even the generational Vaidyas, which are now being used even now also, and they are using these things in very successfully in the patient. Then few drugs are there which has been experimented, which has been documented very well in the different type of studies. In the case of dyslipidemia, there you can use the Kutki, Trikatu and Gugulu. A combination of Kutki, Trikatu and Gugulu is very much potent drug to reduce the lipid level in the blood. Then same Kutki and Trifla is also being used by the different Vaidyas for relieving decreasing the lipid level from the blood. So these are the few medicines we are using in our practice, and you can use it without any hesitation, because what I had told the medicines here is the mostly used by our renowned Vaidyas, and here I told you because I am same drugs I am using in my practice also. So the main thing is that to rule out the maximum heart diseases patients and do the same thing with the someone is asking dose. We will provide the dose in the chat box, because since we don't have time. If Dr. Chauhan is available, then we can move forward for our other participants, because we have since very limited time for the things. So we will provide the dose and other things. If you want, you just drop down the message in your chat box, chat box. You will get the doses and other things also. Okay. Thank you, doctor, and thank you for providing me this platform to present myself. I am very much thankful to our president, Dr. Arun Khare, and our secretary and the organizing committee of BAS. Definitely we will achieve what we are aiming for the BAS
and we will propagate the Ayurveda in the general population also. And it's a very congratulations to all for the celebrating this Ayurveda Day on the occasion of our Lord Dhanvantari Jayanti. Thank you, doctor, and thank you all the organizers for providing me this platform to present myself. Thank you. Thank you, sir. Thank you, very much, boss. sir. Thank you, boss. As So, Ajay sir has told I hand that over the mic if to you Dr. have, Chauhan. Please. okay, thank you, sir. As Ajay sir has told that if you have any query, you may send your question in chat box. He will reply. Although we will continue our program with our next speaker, but if you have any query, you may ask question in chat box. The same thing as per the previous seminar, I have sent the link for downloading the certificate. Anybody who is participating in this program and want to download the certificate for this program, he or she can use the link. It has been given in chat box. So send your questions. Dr. Ajay will reply. Till then, I will move towards the next speaker. As we are talking about the health of heart, we always think about the yoga, pranayam. हम इस तरह के बड़े बड़े शब्द कई बार सुनते रहते हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं. कई बार दो तरह के इस बार हम लोगों ने केसेस को अलग अलग किया है. केसेस का मतलब ये है, एक बार एक ऐसा पेशेंट है जो हाइपरटेंशन का है, जिसको जनरली कोई सिम्टम नहीं होते. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन आर एसिम्प्टोमेटिक. दैट्स व्हाई दीज पीपल्स आर नॉट कंसिडरिंग देमसेल्फ एज ए पेशेंट. So they are always ready to perform all the activities which they are looking on the online platforms, TV media और social media. तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के साथ में ये एक चीज जरूर रहती है कि वो हर चीज, हर योगा, हर एक्सरसाइज करना चाहते हैं. In contrast to this patient, there are some cases of heart like coronary artery diseases cases, heart attack or heart failure cases. These are those patients who consider themselves that they cannot do anything. So our webinar is covering these 2 points, indication and contraindication. Means hypertension का patient जो खुद को patient नहीं मानता है, उसको किस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर जो आगे फर्दर बड़ी कार्डियक डिसीजेस को इनवाइट करता है. सेकंड, जो लोगों को कोई कार्डियक प्रॉब्लम होके गई है, उस तरह के लोग भी किन योगा या प्राणायाम वगैरह या कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको कर सकते हैं, उनको उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस आई एम calling expert of yoga. He is MD in yoga and working as an associate professor. He has performed yoga on many big platforms like district level and state level also. So continuously he is involved in spreading the yoga to the general population. I am calling Dr. Swapnil Kaithwa sir, associate professor of Swasthat and Yoga. Dr. Swapnil, are you hearing us? Yes, sir. Thank you, sir. I am audible. Yes, sir. You are audible. So the first question to you is, हाइपरटेंशन का पेशेंट जो जनरली सब कुछ करना चाहता है, क्या उसके लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कुछ चीजें जो उसको अवॉइड करनी चाहिए? Thank you, sir. Before I answer question, sir, first of all, I like to thank Dr. Gaurav sir and Dr. Ajay sir for their valuable time and clearing our doubts regarding heart health, and especially Ajay sir for clearing management things and giving us all the details about the medicines in Ayurveda regarding heart health and hypertension. Now coming to your question, sir, contraindications of asanas in hypertension. First of all, hypertension and heart disease, they both are closely related with lifestyle disorders. So lifestyle disorders generally अगर बोला जाए तो जीवन शैली जन्य जो हमारे बीमारियां हैं, उनसे ये काफी जुड़े हुए हैं. तो जैसे कि सर ने बताया, हमें डाइटरी चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, तो उसमें हमारी ये सब में भी बताया गया है. प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एक पार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के पहले आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एक पार्ट. तो जहां अभी बीमारी डेवलप भी नहीं हुई है, उनको हम, जैसे कि बच्चे, छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रोन है, आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि फास्ट फूड और इन सब चीजों के प्रोन है, तो उनमें हम कैसे प्रिवेंशन का एस्पेक्ट ला सकते हैं कि ये बीमारी होने ही ना पाए. तो उसके लिए IEC, हमारे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में
we use a term IEC, that is information, education, and communication. So proper information, proper education, and then we have to communicate each and everything. Now coming to question, that is contraindications of hypertension asanas. So in this there are many asanas which are contraindicated in hypertension, such as Shirshasana, Vipreet Karni, that is a part of Sarvangasana, and also Halasana, Mayurasana, Dhanurasana, and all those asanas in which there is a deep bending is involved. So avoid these asanas totally in case of hypertension. And please don't blindly follow all the things which are given on Google. They just, if you type contraindication or asanas in hypertension, they will give n number of asanas. On different websites, different asanas are given. So please search a proper yoga instructor or a doctor who is well versed in yoga, so that you can achieve your goal and remain healthy. So these are the contraindicated asanas. Next, there are some precautionary asanas which you can do, but if your BP is in, जैसे कि सर ने बताया already कि 140/90 is the average we take these days. So if you're borderline hypertensive, then you can do Uttanasana and Bhujangasana and Marichasana, Ardha Matsyendriyasana. So these asanas you can do with proper precautions. In precautions, I mean there are several steps in asanas. If you do asanas without proper inhalation and exhalation, that is exercise. So what is different from exercise is inhaling of breath and exhaling. So proper inhalation and exhalation is very important. These things are not given on Google. So a proper doctor or proper yoga instructor can give you these knowledges. And now coming to the recommended asanas. So Balasana is there, Paschimottanasana is there. You can do Bhadrasana. You can do Salamba Bhujangasana, Shavasana, Makarasana, Vajrasana. These are the asanas which are recommended in hypertension. Easily you can perform by watching videos or by visiting a yoga instructor. You can learn and then you can perform. So precautions in this, a doctor consult is always important before practicing asanas. And firstly, you have to practice under some guidance. If you get used to, then you can perform singly. Then monitor your blood pressure regularly. Then avoid practicing yoga during hypertensive crisis. Then modify or avoid asanas that exacerbate hypertension. So what I told previously, that is deep bending and deep rotation exercises should be avoided. Asanas should be avoided, and focus on meditation more, breathing exercise, calming techniques, and relaxation. Focus on these things more. Sir. Okay, sir. Breathing exercises, calming exercises, avoid bending exercises or creating hyperexertion. So these are the some clues. Although the most important clue is to perform any kind of yoga under the guidance of yoga expert. So Yes. that was the question कि hypertensive patient को किन चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए, उसके बारे में सर ने बहुत अच्छे गाइडेंस हम लोगों को प्रोवाइड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक पेशेंट हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर एक बार डायग्नोस होने के बाद कई बार वो सोचता है कि अब हमको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है. So क्या ऐसे there are some kind of yoga or asana or other techniques which can be performed by these patients? Yes, sir. There are some asanas which you can do. Firstly, you have to avoid the acute phase, that is 0 to 6 weeks post MI or something like that. You can avoid. Unstable angina or chest pain is there, then you can avoid totally. Then contraindication is there. Severe heart failure, cardiac arrhythmias, recent cardiac surgeries or pulmonary embolism or deep vein thrombosis. When these cases are there, you should totally avoid asanas. Precautions, I already told previously, you have to take those precautions. Then recommended yoga practices, I would say chair yoga is there. In our YouTube channel, I will
send a separate video regarding chair yoga for cardiac health. So chair yoga you can do proper meditation exercises, breathing exercises such as Shitali, Shitkari, Anulom Vilom. So basically, after a cardiac issue, you cannot go straight in asanas. First, you have to make your body comfortable in sitting. So try to do meditative postures. Try to do Vajrasana. Try to do Makarasana. Try to do Shavasana. Try to do Anulom Vilom, Pranayam, Shitali, Shitkari, these type of things, Chandra Bedi. So make your body comfortable. Then what I have told in hypertensive asanas, you can perform those asanas easily. For avoiding same Shirshasana, Viparit Karni, Halasan, Mayurasan, these should be avoided. ओके सर, जैसा कि सर ने हमको बताया, ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सर की तरफ से। कार्डियक हेल्थ से रिलेटेड जो भी योग आसन करने चाहिए या जिनको अवॉइड करना चाहिए, वो सर खुद अपने वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि इन चीज़ों को समझने में अगर विजिबल रहें चीज़ें तो बहुत आसान रहती हैं, तो सर खुद अपने वीडियोस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सबको प्रोवाइड करेंगे, जिनको देखकर फॉलो करना या उन चीज़ों को सीखना थोड़ा आसान रहेगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट जो सर ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज स्टार्ट योर योगा और एनी टाइप ऑफ द आसन अंडर द गाइडेंस ऑफ योगा एक्सपर्ट। ऑलवेज मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर और एनी काइंड ऑफ डिसीज। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज ऑल्सो नेसेसरी सो दैट यू कैन थिंक इज देयर एनी इंक्रीज इन योर डिसीज और नॉट। तो ये सर की तरफ से बहुत अच्छी चीजें हम लोगों को गाइडलाइन की तरफ बताई गई। एनी अदर कोई ऐसी चीज जो सर आप शेयर करना चाहते हो कार्डियक हेल्थ से रिलेटेड ऑडियंस के साथ? सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेस फैक्टर आज के इस टाइम पे स्ट्रेस रिडक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दिस डेज। तो रेगुलर योगा प्रैक्टिस में बेसिकली यू हैव टू डू कामिंग एक्सरसाइज मोर। जैसे कि आपका ही सवाल था सर कि आजकल एमएनसीज या कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो उनके लिए जैसे भी आपको थोड़ा सा समय मिलता है तो आइदर परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस or chair yoga or some walking in your free time. This is very necessary. Next, proper blood pressure management and improved circulation. So by doing your breathing exercise and all, you can improve your circulation. So these are, and weight management. So weight management is very important these days. So all the lifestyle disorders, obesity, diabetes, hypertension, cardiovascular disorders, they are very closely related to each other. So weight management and all these things are very necessary. So proper weight management, जैसे कि हमारे गौरव सर ने बताया था, BMI वगैरह प्रॉपरली हम लोग को चेक करते रहना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। इसके लिए आप लोग बहुत से जो प्लांट बेस्ड हमारे फूड आइटम्स हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और प्रॉपर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग। नॉर्मली अगर आप बहुत ज्यादा वर्किंग है, सुबह 8 से रात के 10 बजे तक ऑफिस में ही है, तो जब भी आपको समय मिले इन योर लंच आवर्स और सम इन योर टी ब्रेक, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप नॉर्मल वॉकिंग या डीप ब्रीदिंग या चेयर योगा ये सब आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपके सर इसमें से कुछ एक काफी अच्छी चीजें हम लोगों को समझ में आ रही हैं। जैसे आपने कई बार चेयर योगा के बारे में बात की, तो ये सच है कि कई बार हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग में हैं, आईटी सेक्टर्स में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, इवन टाइम से सुबह उठ के जो एक ट्रेडिशनल वे माना जाता है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी कॉज। तो क्या ड्यूरिंग वर्क जब वो जॉब प्लेस पर हैं, काम कर रहे हैं, उस बीच में उनको 10-15 मिनट या ऐसा कोई भी समय मिलता है, तो क्या उस टाइम पे कुछ तरह की योगा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, वही चेयर, जी सर, चेयर योगा बेसिकली वही है कि व्हाट यू कैन परफॉर्म बाय सिटिंग ऑन योर चेयर। तो आपको कहीं स्पेशल योगा मैट या कोई ऐसे स्पेशल प्लेस की जरूरत नहीं है। व्हाइल सिटिंग ऑन योर चेयर यू कैन परफॉर्म, यू हैव टू डू स्ट्रेचिंग। बेसिकली आपकी बॉडी को जो पूरा इस टाइम पे स्ट्रेस्ड है, आपको उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ाना है, तो यू डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग। तो वो अपना जो यूट्यूब चैनल है सर BS का, उसके माध्यम से हम लोग बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसको शेयर करें। ओके सर, ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा आपके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन एजुकेशन में है, या एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो वर्किंग जोन में है, वो
अगर वर्किंग प्लेस पे कुछ योगा वगैरह कर सकती है जो उनके हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आपके जो भी ये यूट्यूब चैनल पे वीडियोज आते हैं, हम इनको जल्दी से सर्कुलेट करेंगे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इस चीज की जानकारी उपलब्ध कराता हूँ मैं सभी के लिए। भारत आरोग्य संगठन का एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर इस तरह की बहुत ही बेनिफिशियल चीजें जो आपकी लाइफ को मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगी, उन चीजों से रिलेटेड वीडियोस एक एक्सपर्ट्स के माध्यम से मिलेंगे। डॉक्टर स्वप्निल इज MD इन योगा। जनरली हम इस चीज को बताने में कोई हेजिटेशन नहीं कि बहुत ज्यादातर जगहों पे जो योगा चल रहे हैं, ज्यादातर ट्रेडिशनल लोग करा रहे हैं या फिर जस्ट कोई 5 to 6 मंथ सर्टिफिकेट लेके करा रहे हैं। बट डॉक्टर स्वप्निल इज अ प्रोफेशनली डॉक्टर, ही इज MD होल्डर इन योगा फील्ड। तो उनके बताए हुए जो भी तरीके होंगे, जो भी प्रिकॉशंस होंगे, वो बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको ये योगा अपडेट्स कंटिन्यूसली मिलती रहे। तो थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल सर, आपने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हर्ट्ज से रिलेटेड इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और कामिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। नाउ Now I will move ahead. Dr. Khaire is our president, is at present involved in a labor procedure. तो वो अभी एक डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके कारण वो अभी हमसे कनेक्ट नहीं कर हो पा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो नाउ आई विल कॉल डॉक्टर श्रीचंद सर। डॉक्टर श्रीचंद सर इज द MS in surgery, Master of Surgery, and he is working as assistant professor and also holding the responsibility of state president of Bharat Arogya Sangathan. So, Dr. Srichand sir, are you hearing me? Yes, sir. Sir, thank you, sir. So now it's your time to vote of thanks. Okay, thank you, sir. Good evening, one and all. On the behalf of BAS, it is my privilege to have been to propose vote of thanks in this great occasion. First of all, I am expressing my deep gratitude to our president, Dr. Arun sir, who is considered as a backbone of this BAS. And thank you so much, sir, for your valuable inputs and to conduct this type of occasions. Then for the most, we have thankful to our renowned personality or chief guest, that is Dr. Gaurav sir, cardiologist, who shared his immense knowledge to us and give good concept regarding the cardiology. And thank you so much, be with us for and give us to a valuable time. And another, I also expressing my gratitude to our Dr. Ajay Kumar Singh sir, who gave a clear idea regarding the Ayurvedic Panchakarma and the Panchakarma, how it's involved in the cardiology, and and his experience he shared with us. Thank you for being with us and for your valuable time, sir. And we also thank to our Swapnil sir, who gave the idea regarding the yoga and pranayama and loosening exercise regarding the cardiac diseases. And thank you for being with us and give your valuable knowledge, sir. And I also thank to our Dr. Sarvesh Tripathi sir, who is the National Head Coordinator, Cell BAS. And thank you for being with us and thank you for your cooperation, sir. Next, I am also thanking to our organizing secretary of this webinar, Dr. SP Chavan sir, who is coordinating this event very well, and his interactive sections was very interested, and it is he's well known regarding, he already covers the all things regarding the cardiology, pathologies and physiologies and what are the treatment also. So first of all, I'm thankful to sir to conducting such a wonderful event and for your time, sir. Next, I am also expressing my sincere gratitude to Dr. Ambli madam, who welcomed us with a sweet voice and sweet song. Thank you, madam. And the members of organizing secretary members like Dr. Sandeep sir, Vaishnavi and Aarti Singh madam, and other coordinating members who made this event grand success, and who worked behind the this event and made this grand success. And last but not least, finally, I am thanking to all doctors, students, PG scholars in the various places of India, and the supporting staff who made this event great success, and the WhatsApp group admins who circulate our seminar advertisement to all over India. I am thanked to everyone
to make this event grand success. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And as vote of thanks has been given, so the last thing I will like to repeat again. Students who are participating here and who want certificate for the program, they may download the certificate. The link I have sent already before nearly 20 to 25 minutes ago. So all the students who are involved or practitioners who want to download the certificate, they can download. Our meeting will continue for 5 minutes more, just only for giving time to downloading the certificate. All our person who have participated here, right from Dr. Ambili Madam, Dr. Ketan, then Dr. Gaurav sir, who was the chief speaker of today's program, Dr. Ajay sir, Dr. Swapnil sir, and Dr. Srichand sir, all those who have participated here for making the successful event. I am thankful to all these renowned persons. For next program, we will very soon declare as per the inputs we will get. These two seminars were conducted on the demand of students. So our Bharat Arogya Sangathan WhatsApp group is there, email is there. These are the forms by which you can ask for the topic of the next seminar. Our committee will decide, and accordingly we will organize the next event. So it's time for the student to just download the certificate, and I am just closing my words here. Thanks to all of you.